Hello, children. How are you? Hope that you are very fine in your home, and you must be. Today, I am going to teach you a poem. That is the name of the title of the poem is Imagination. Okay, it is in section 3 of class 8 of unit 4, okay, of your English book, that is New Pathways, Oxford University Press. And that is very popular poem, you can say, students. And before spreading the poem, just I want to share with you that is the poem, and the poet of this poem is George Bernard Shaw. Okay, and shortly, George Bernard Shaw is known as JBS. JBS. That is George Bernard Shaw. And George Bernard Shaw wrote many playwrights. That is, he was also a political activist and a great critic. Okay, his famous play is Arms and the Man, Man and Superman, Pygmalion. Okay, and he wrote so many critic that Freedom. Okay, and so many good things he did in English literature, and his statements of his critics and the novel and the playwrights, often they are quoted. And in 1925, he was awarded with the Nobel Prize in literature. Okay, students, this is the poem about his childhood days, and it is the imagination means, that is the not real. It is completely unreal thinking, and sometimes we enjoy it, sometimes we such a kind of dream we see in your daytime also. And suppose that just you are going to the moon. Just in the previous lesson we read such a story like that, the journey to the center of the earth. Okay, that is, you can say, the fantasy. Okay, fantastic idea, full of the fantastic idea, and that is very enjoyable, and it is the part of the literature. Okay, and you can see the fantasy. On the base of the fantasy, the poet here, George Bernard Shaw, wrote this poem of his childhood days. What did he want to do, and what was his imagination? Yet now in the adult age, he uh, wants such and such things to do. Okay, now start now. In the first stanza, you see that uh, the poet wants, I used to play at pirates. Okay, pirates means, चिल्ड्रेन, ये पायरेट्स क्या होता है? ये पायरेट्स जो है, ऐसे डेकोएट्स होते हैं, लुटेरा होता है जो समुद्र में रहते हैं, समुद्री लुटेरा। ठीक है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बचपन में क्या है ना, आई यूज्ड टू प्ले एट पायरेट्स एंड सेल्ड द सेवन सी, सातों समुंदर पार होकर वो पायरेट्स बनना चाहते थे। ऐसा ही खेला करते थे, पायरेट्स पायरेट्स, जैसे हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे अब जानते होंगे। और ऐसे ही पायरेट्स वाला गेम वो खेलते थे। और जब ख़त्म होने के बाद, देन आई वॉज ए काउबॉय। काउबॉय मीन्स, दैट cowboys means that the boy in the person, you can say, that who drives the buffaloes and the cows and the such other cattle, जो पशुओं को चढ़ाते हैं
ऐसे भारत में जो काउबॉय है उनका चेहरा कुछ अलग रहता है। ऐसे विदेशों में जो है, ये फॉरेन कंट्री में काउबॉय का एक ड्रेसअप रहता है जिस पर वो घोड़े पर चढ़ के वो जानवरों को देखभाल करता है। उसके पास एक शेफर्ड होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, और उसका गाम बूट होते हैं। इस तरह का उसका ड्रेसअप अलग है। भारत में ऐसे गाय भैंस चराने वाले लोगों को तो आप जानते होंगे। तो काउबॉय, ये जस्ट लाइक यू कैन से दैट इज़ द वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज person who drives the buffaloes and the cows and the cattle. ओके ओके। तो पोइट बचपन में ये भी चाहते थे, देन आई वाज, उसके बाद वो कहते थे मैं एक काउ बॉय बन गया। अब चलो हम जानवरों को लेके खेत में चढ़ाऊँगा चढ़ाऊँगा। ऐसे इस चीज़ को वो सोचते हैं। दैट इज़ द ओनली द इमेजिनेशन, द टाइटल इज इन द पोएम, यू कैन सी दैट। तो दिस सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज़, ये सब छोटे छोटे चीज़, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब बहुत करने में उनको बहुत मज़ा आता था। लगता था ऐसा ही, ऐसा मैं अगर करूँगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। ओके, इन द सेकेंड स्टेंजा यू सी दैट। नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा ये सब पसंद आता था उनको। नेक्स्ट स्टेंजा यू सी दैट आई हैड ए विविड इमेजिनेशन। विविड इमेजिनेशन मीन्स दैट ए क्लियर कट इमेजिनेशन, मतलब इसमें कोई अनक्लियर थिंग नहीं है, और मतलब सब कुछ क्लियर है, जहाँ कुछ छुपाने की बात नहीं है। एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड। कहते क्या है, ये जो इमेजिनेशन है ना, ये एडवेंचर है, ये सब मेरा माइंड में हमेशा रहता था। और मैं चाहता था हमेशा मैं कोई रिस्की काम करूँगा और कुछ एडवेंचरस काम करूँगा। आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग एंड एस्केप्ड द डेली ग्रीड। और जिससे वो उनको आनंद किससे आता था, ना कुछ नयापन काम करने के लिए, जस्ट न्यू थिंग टू इन्वेंट एंड डिस्कवर, एंड दैट इज़ द जॉयज ऑफ रीडिंग, लाइक दैट। एंड ही ऑलवेज एस्केप्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्क, यू कैन से दैट। जैसे देखते हो ना, बच्चे लोगों को बोला जाता है जाओ बाबू थोड़ा सा न्यूज़पेपर बाजार से लेके आओ, जाओ ना थोड़ा सा ये काम कर दो। तो ये वो ले आओ, ये लो, ये जो घर में आपको भी पेरेंट्स बोलते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, आप कभी कभी बहुत तंग आ जाते होंगे, यू बिकम वेरी वेक्स्ड। ओके। तो ये सब काम से वो बहुत मतलब अपने को बचना चाहता था। उनको मज़ा नहीं आता था, उनको ये जॉय ऑफ रीडिंग एंड एडवेंचरस चीज़ को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। नाउ द थर्ड स्टैंजा यू सी दैट, लेट्स स्टार्ट। वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोज इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ये जानते हो, ये अंटार्कटिक रीजन में जो पोलर रीजन होते हैं, इसमें जो है एस्किमोज, द पीपल हु लिव इन द इग्लूज। इग्लूज आप जानते हो, द हाउस ऑफ द आइस, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें वो इग्लूज लोग का एक लाइवलीहुड बहुत हार्ड्स होता है, इसके पास रेनडियर ये सब होता है, और वो इग्लू में वो लोग रहते हैं, एस्किमोज। ओके, इन लोगों को एस्किमोज कहा जाता है, इग्लू में रहते हैं। और इन लोग जो हंटिंग करते हैं, इन लोग के पास एक हार्पून्स वगैरह रहता है, वेपन्स होता है ऐसा, जिसको हम लोग बूमेरांग भी कहते हैं। तो एक ये सब फैंटेसी, मतलब जो है ना, एक कल्पना जो है उनके मन में चलते रहता है। माई फैंटेसी वॉज ऑल द इग्लू। ओके, ये इग्लू में इस एस्किमोस बनने का एक जो है इमेजिनेशन उनके मन में रहता था, और वो मन में सोचते थे, इसमें उनको बहुत एंजॉय आता था इस तरह का सोचते हुए और ऐसा एस्किमोस बनते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक दैट यू आर very clearly understanding all the things, all the pictures. Now see that next stanza, just we are going to move that stanza. Now see that the next stanza, that is the, I read a book of Jules Verne and went off to the moon. जैसे कि एक कल्पना है इनका लिखा हुआ बुक्स को पढ़ना, जिस जुल्स बॉन्ड की किताब उनको पढ़ते थे और मून पे चले जाते थे।
और वो सोचते थे वहाँ पर जाके बहुत चीज़ एक्सप्लोर, ही वांटेड टू एक्सप्लोर और मैनी अदर थिंग्स, जैसे कि आप भी सोचते हो ना, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ही वेंट टू द मून, आप चांद की कहानी सुने ही होंगे। तो ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इस तरह का चीज़ को सोचते थे, जो मून पर जाना और फिर से वहाँ से लौट के आना। ठीक है, तो नेक्स्ट यू सी दैट द नेक्स्ट स्ट्रेंजर स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। आप सोचते क्या है, और डॉक्टर लिंगस्टन एज माई गाइड, और सोचते डॉक्टर लिंगस्टन जो है वो मेरा गाइड होंगे, और अफ्रीका का जो डेंस फॉरेस्ट है इसमें मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा। ऐसा मतलब सोचते हैं जॉर्ज बर्नार्ड सर thought about the all the imagination that he was now in this South African forest, और उसमें घूम रहे हैं, और उनका गाइड है लिविंगस्टोन। ओके, दैट वाज द थिंग। और इस तरह से, और नेक्स्ट स्ट्रेंजर सी दैट इन माय वर्ल्ड द फैंटेसी एंड, वो ये सभी जो है उनका माइंड में ऐसा ही फैंटेसी और इमेजिनेशन से भरा हुआ था, and his mind was full of the imagination and such kinds of fantasy. And so the poet George Bernard Shaw tells us that he wanted to do such and such things. Okay, I performed such wonderful deeds, a hero of all the nation. I was one of that did succeed. अरे सभी में मैं सफल हो जाऊंगा, और पूरा नेशन का मानते थे कि मैं एक जो है लीडर बनूंगा, एक हीरो बनूंगा, और सब लोग मुझे जानेंगे। अपने आप को, मतलब क्या है जे यहाँ पर पोएट खुद अपने आप को ही एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में पाते हैं, और एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में पाते हैं, और पूरा नेशन का एक हीरो के रूप में मानते हैं अपने आप को। नेक्स्ट स्टैंजा लास्ट यू सी दैट, और इस इन दिस स्टैंजा यू सी दैट द पोएट इज टेलिंग दैट नाउ ही इज़ एन एडल्ट पर्सन, नाउ ही इज़ नॉट द चाइल्ड। एंड ये तो जानते हो जीवन में एक स्टेज है, एक बचपन का स्टेज, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी साथ साथ में लोगों के साथ रहता है। जो जो चाइल्ड हुड का जो पीरियड है उस समय में, सपोज दैट वेयर यू आर जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स, सच काइंड ऑफ चाइल्डिश वर्क यू आर डूइंग, दैट वी कांट डू, we can only imagine about the such and such things what are you doing now, and we did all the same things in our childhood days. Okay, so in the same way George Bernard Shaw is telling that when he was child he thought all the things, but now he is an adult person. Okay, and then I grew up my childish, अब तो समय चला गया है, चाइल्डिश वर्ल्ड तो ख़त्म हो चुका है। आई बिकम द सीरियस, अब तो सब कुछ मुझे, क्योंकि अगर कोई भी एक बड़े आदमी अगर बच्चे की तरह कोई काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे जी देखो आदमी कैसा है, बच्चा ऐसा बोलता है, बच्चा ऐसा काम करता है, लोग हंसेंगे। द पीपल मेक यू लफ। ओके, लाइक दैट द पोएट इज टेलिंग द सेम थिंग, आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस, लेकिन फिर भी आई वांट टू डू, मतलब उनका मन में ये अभी भी तमन्ना है, इच्छा है, डिज़ायर है। हिज डिज़ायर डजेंट डाई, उनका जो मन में जो डिज़ायर है, इच्छा है ना, वो ये सब काम करने का, वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, करना चाहते हैं। दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड। पोएट यही कहते हैं जे भले ही वो बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा ही सभी काम को करने का उनका मन में एक उमंग है, एक चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द पोएम एंड दैट इज़ द मैसेज conveyed by the poet George Bernard Shaw. And children, you will remain in my channel and subscribe my channel so that you will get the more videos
next videos, and you just visit the description box so that you will get your exercises and the solutions. Okay, students, goodbye.